वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट से अवगत कराता हूँ। वास्तविक में न्यूटन्स को लॉज ऑफ मोशंस को 3 डिफरेंट भागों में बांटा गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ए मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ए मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ए मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ए मोशन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ आज कर रहा हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ मेरे नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा। चलिए मैं आज एक स्टडी करता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या कहता है कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए ब्लॉक, ओके, हुज मास इज m. Got it? Let us suppose a force acts on it. This is called F, external force. External force acts on a body. Its initial momentum, what is mass? Let us consider mass is m. What is m? Mass of the body. What the Newton's second law say? The rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum is equal to force externally applied on a body मैथमेटिकली। मैं इसे बहुत सुंदर लैंग्वेज में कह सकता हूँ। मैथमेटिकली in a differential form, force applied is equal to rate of change of linear momentum, where P is linear momentum. We know, हम लोग जानते हैं, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। V stands for velocity of the body and m stands for mass of the body. ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर मोमेंटम। अगर मैं इसके इक्वेशंस पर पुट करूं तो दिस इक्वेशंस कम्स आउट टू बी डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी t. नाउ इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी changes with time, velocity changes with time, अगर मैं ये मान लूँ कि मास और वेलोसिटी दोनों समय के साथ चेंज करते हैं तो दिस F अप्लाइड इन ए डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन, लीव m एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट dv by dt. Second, leave as a velocity constant and then dm by dt. This is the differential form of. Now, case 1. Consider this case. Case 1, when mass of the body is kept constant. Mass of body is kept constant. अगर मास कांस्टेंट है, आप आ जाइए उस फॉर्मेट में। व्हाट इज द एफ अप्लाइड इन दैट केस? इक्वल टू m dv by dt. एंड द सेकेंड पोर्शन v, एंड कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है, आप यहां पर देखिएगा, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. So what is the F applied? M dv by dt. This can be further written as
m applied mass into acceleration. This is the simple format. Or dv by dt can further be written as, this can be m average भी लिख सकते हैं फोर्स को, कैसे, m this is v2 minus v1 in a vector form divided by time t taken. अगर v2 minus v1 दिया हुआ डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटी टेकन अंडर ए डिफाइंड टाइम, then this is called an acceleration and mass time acceleration. Simple, F applied equal to mass time acceleration. यहाँ acceleration instantaneous है, इसलिए force भी क्या हो जाएगा, instantaneous हो जाएगा. यहाँ v2 minus v1 एक difference of velocity है under a certain time period. It is a never an instantaneous. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, this v2 minus v1 divided by t2 minus t1, this is nothing but average acceleration. So average force we can write here, it is the average force mass into this is the average acceleration. Simple. In case 2, let us consider case 2, velocity magnitude is constant, velocity is constant and mass varies with time, and mass varies with time. Under that circumstances, F applied will be, जो मैंने पहला वाला पार्ट दिया था वो क्या दिया था, m and dv by dt, and the second part दिया था v dm by dt. Now this time velocity is constant, so differentiation of velocity with time of course becomes zero. Differentiation किसी भी constant का v, this is the dm by dt. So what is the applied force under that circumstances when mass is a variable and velocity is a constant? This is the v dm by dt. This is the second form of Newton's second law. For example, we can calculate the answer also. Here in this case, if mass decreases with time, mass decreases with time, under that circumstances, F applied would be V, this dm by dt becomes negative. Okay. So, what is the F applied? F applied is equal to minus V dm by dt. So, what is the significance of this minus sign? It simply indicates velocity and force are opposite to each other, just like in rocket expulsion. You see this is. Here you can see this is the velocity of gas. This I call relative velocity of a gas with respect to rocket. अगर velocity का direction इस side है and under that circumstances dm by dt is equal to negative है, तो force इस velocity के opposite लगेगा and this force is called upthrust force and so the rocket gets lifted up. ये इस केस में हम लोग इसको कहाँ पर यूज करते हैं, in a rocket propulsion. रॉकेट प्रोपल्सन इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और भी वैसे जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं. इसको रिलेटिव ले लीजिएगा, यहाँ पर आप इसको और भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई स्टीमर है, स्टीमर से अगर एग्जॉस्ट गैस निकल रहे हैं तो उसके ऊपर एक न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उस पर एक फोर्स लगेगा और वो आगे की ओर बढ़ेगा. यहाँ भी है, इस वेलोसिटी के निकलने से इस पर एक फोर्स लगता है. वो फोर्स कितना होगा आप देख सकते हैं. मान लीजिए कोई एरोप्लेन है और सोचिए जो एरोप्लेन अगर कोई हवा में उड़ रहा है तो वो कैसे उड़ता है. ग्राउंड में अगर कोई रॉकेट, मान लीजिए कि एरोप्लेन चल रहे हैं ग्राउंड पर, एरोड्रम में चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर चल रहे हैं, तो वो तो ज़मीन के फ्रिक्शन के सहारे चलते हैं. लेकिन सोचिए जब हवा में चलते हैं तो उसको ग्राउंड की तो फ्रिक्शन नहीं मिलता है और विदाउट फ्रिक्शन वो कैसे चलते हैं, तो वो अपने एग्जॉस्ट गैस को पीछे की ओर निकालते हैं अंडर वेरी हाई वेलोसिटी एंड ड्यू टू द, आप देख सकते हैं सेकेंड लॉ,
very high force acts opposite to the direction of a velocity and this way aeroplanes moves forward. तो एरोप्लेन का आगे बढ़ना या रॉकेट का ऊपर उड़ जाना इन सभी के मास के डिक्रीज करता है एंड वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता है। लेकिन मेरा जो आज का ये जो मेन क्लास है ना, उस क्लास में मैं ये देखूंगा कि मास इज ए कांस्टेंट ऑल द टाइम एंड वेलोसिटी वेरीज एंड सो द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। और जो नेक्स्ट चैप्टर जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ रॉकेट प्रपल्सन, उसमें आप इसको देख सकते हैं। रॉकेट प्रपल्सन ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। इफ ए बॉडी moves with velocity v equal to 2t plus 3t square. So the velocity is getting increased with time, where t is time in second and v is the velocity in meter per second. लेट अस कंसीडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इज वेरिंग। अगर वेलोसिटी वेरी करता है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो ए बॉडी ऑफ मास, लेट अस सपोज मास इज 10 kg, मूव्स विथ ए वेलोसिटी। फाइंड फोर्स एक्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये आपको निकालना है। चलते हैं जरा सा मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूं, कैसे कर पाऊंगा। आंसर्स आपके पास फोर्स क्या दिया हुआ है एज पर द रूल्स? दिस इज dp बाई dt। वेरी फाइन। दिस कैन बी रिटन m, एज्यूमिंग m टू बी ए कांस्टेंट एंड फर्दर इट इज रिटन एज dv बाई dt। सो m ऑलरेडी गिवन 10 kg and dv by dt means what? 2 plus 60. So this is the value 10 kg into 2 plus 6 into 1. This is 80 Newton. So 80 Newton force is acting. किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? In the directions of velocity. This force acts in the direction of velocity. ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां पर आ जाइए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस तरह से। सपोज कीजिए कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है एंड सी दिस इज चेंजिंग लाइक दैट। दिस टाइम इन सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट वेलोसिटी। दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड एंड दिस इज 6 सेकेंड। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड व्हेन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके 0 सेकेंड तक के बीच में पूछता है कितना फोर्स लगेगा व्हेन टाइम इंटरवल इज 0 to 2 सेकेंड और कुछ सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक की पूछ रहा। दिस वेलोसिटी इज 0, टाइम इज 0। सिंपल फॉर्मेट क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो dv बाई dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस dv बाई dt। ओके, m रहने दीजिए। व्हाट इज चेंज इन ए वेलोसिटी ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल? और ये देख सकते हैं लीनियरली वेरीज करता है। तो 20 से 0 हुआ, 20 माइनस 0 हुआ और ये टाइम कितना लगा? 2 माइनस 0। तो दैट इज मास मैंने पहले ही बाहर ले लिया, दैट इज 10 kg एज पर द क्वेश्चन। दिस इज 10, सो इट इज ए 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन ये फोर्स किस में आ रहा है? पॉजिटिव। सो फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हो गया कि इस जोन में फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ता चला जा रहा है। इस जगह पर आप क्या देखते हैं? फॉर टाइम व्हाट इज ए फोर्स निकालना है फॉर टाइम। दूसरे टाइम में आ जाइए। किस टाइम की बात करते हैं बच्चे लोग? इस टाइम में 4 और 2 सेकेंड के बीच में टाइम t 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के इंटरवल पर है। ये फोर्स क्या हो जाएगा? मास टाइम एक्सीलरेशन और dv बाई dt, दैट इज मास इनटू dv बाई dt। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर भी वेलोसिटी कितना है?
20 मीटर, और इस पॉइंट पर भी कितना, 4 सेकेंड पर भी 20. सो देयर इज ए नो चेंज इन वेलोसिटी. 10 इंटू नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन 0 एंड देयर इज ए नो फोर्स इज एक्टिंग. सो नो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस जोन. फोर्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर फोर्स आपके पास 100. अब यहाँ की बात करें, इस टाइम पर आ जाइए. किस टाइम के लिए बच्चे लोग? टाइम इंटरवल लेस देन 6 सेकेंड एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 4 सेकेंड. इसमें क्या हो रहा है आपको ये देख सकते हैं. फोर्स, कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. बाद का वेलोसिटी 0 है, शुरू का वेलोसिटी 20 है और टाइम 6 में से 2. सो 10 माइनस 10 सो इक्वल टू माइनस 100 न्यूटन. माइनस क्या शो करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? माइनस ये शो करता है कि फोर्स एंड वेलोसिटी आर अपोज टू ईच अदर, एंटी पैरेलल. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. दिस इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. जब भी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा फोर्स, वैसे फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स. फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास एक ब्लॉक है एंड दिस इज द, आई कॉल इट ए स्मूथ सरफेस. स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं लगेंगे इसको. एंड हेयर ए फोर्स इज एक्टिंग. लेट अस सपोज दिस इज 100 न्यूटन and this force is acting making angle horizontally 53 degree and this mass is, let us suppose 20 kg or let us suppose 50 kg for better calculation. Okay, इसमें क्या पूछता है? नंबर 1, फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन. हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इफ एनी, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. दूसरा वर्टिकल एक्सीलरेशन. वर्टिकल एक्सीलरेशन इफ एनी, कंडीशन है. और तीसरा और लास्ट नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ब्लॉक. ओके, सो ऑल दीज 3 डिफरेंट थिंग्स आर टू बी रिक्वायर्ड. जब भी फोर्स आपको दिया रहे, आपको क्या करना चाहिए? इस फोर्स को 2 भागों में बांट दीजिए, इसे रिजॉल्व कर दीजिए. ये कितना हो जाएगा? दिस इज 100 cos 53 डिग्री, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स. और अगर इसको हम लोग कर दें तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 100 sin 53 डिग्री. अब ये फोर्स आपका खत्म हो गया. सो देयर आर ओनली 2 फोर्स. इस फोर्स को डिलीट करके हमने इसे 2 पार्ट में है. इसमें एक और भी कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी. वो कितना लगेगा? 500 न्यूटन. और एक सपोर्ट का रिएक्शंस लगेगा, दैट इज कॉल्ड आर. मैंने रिएक्शन दे दिया, नॉर्मल रिएक्शन और सपोर्ट रिएक्शन फ्रॉम द बेस. अब आपके पास क्या हो गया? सबसे पहले आप देखिए कि ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है और ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है, इसे चेक कीजिए. 100 sin 53 मतलब 4/5, ये 20 और 4 80, तो दिस इज 80 न्यूटन. डाउनवर्ड को कितना फोर्स लग रहा है? 500 न्यूटन. तो क्या डाउनवर्ड ज़्यादा है या अपवर्ड ज़्यादा? आप चेक कीजिए, डाउनवर्ड ज़्यादा है. लेकिन ये ग्राउंड क्या है? रिजिड है, तो क्या नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा. तो इसका मतलब है ये बैलेंस में है. आप देखिएगा ध्यान से, ये ब्लॉक क्या है? बैलेंस हो गया. अगर ये बैलेंस ब्लॉक है, चूंकि ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी 0. तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0. क्यों 0 है? एज पर द कंडीशन. ग्राउंड स्टेबल है या रिजिड है, डिड नॉट यील्ड, नहीं कर सकता है. इसका मतलब हो गया जो इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर? एक ग्रेविटी लग रहा है 500 न्यूटन, ग्राउंड से एक सपोर्ट रिएक्शन नॉर्मल लग रहा है, और एक ऊपर की ओर जो हमने कैलकुलेट कर रखा है 80 न्यूटन. ये बात हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स को 0 होना है. ऊपर है तो माइनस, ऊपर है एन, नॉर्मल रिएक्शन है इसका, हमने यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन को एन माना, नॉर्मल रिएक्शन एन, और नीचे जा रहा है, इसको अगर पॉजिटिव ले लें तो 500, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो गया? एन इक्वल टू 420 न्यूटन. दैट इज सो सिंपल. एन का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन.
अब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वर्टिकल एक्सीलरेशन, दैट इज 0। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि देयर इज ए नो नेट फोर्स इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 हो जाए। लेकिन अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेक करें तो क्या है, 100 cos 53 को 3/5, अब ये कटेगा 60 न्यूटन हो गया। बहुत अच्छी बात है। और ब्लॉक की मास से 50 है। सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, AH हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, F हॉरिजॉन्टल नेट उस दिशा में कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय मास। ये दो फॉर्मेट पर चलेंगे। नेट हमारे पास तो अभी आ चुका, सिर्फ और सिर्फ चूंकि नीचे से स्मूथ है तो सिर्फ एक ही लग रहा है 60 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मास, सो इट इज 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो द आंसर। नॉर्मल रिएक्शन यू गॉट, vertical acceleration is 0 and horizontal acceleration is 6/5. Next question. क्या कहता है कि there are two blocks touching each other. Mass of the block A is 20 kg, mass of the block B is 10 kg, and there are two horizontal forces are acting anti-parallel to each other. 100 Newton from left on a block A and 40 Newton force is acting on a block B towards the left direction. So, अगर मैं इन दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर करूं, कंसीडर A and B एज ए सिस्टम, A and B एज सिस्टम। अगर दोनों को सिस्टम कंसीडर करें तो व्हाट इज द F नेट अप्लाइड, कितना अप्लाइड हो गया हमारे पास, जो इस साइड लग रहा है वो कितना है 100 है, और जो इस साइड लग रहा है वो माइनस हो जाएगा। So what is this force? 60 Newton. This is the total externally force applied. What about the acceleration? Force applied divided by mass system. क्योंकि हमने सिस्टम का ही फोर्स लिया इसलिए मास भी सिस्टम का। F अप्लाइड है 60 एंड दिस इज 30 मास टोटल सिस्टम का। सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट पूछता है व्हाट इज ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B, व्हाट इज ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B। ये भी उसी की पार्ट है क्वेश्चन का। मैं कैसे करूं, फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने पहले पढ़ाया था, एक को आप अलग कर दीजिए एंड दिस इज 20 kg। यहां से इसको आप पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट एंड दिस फोर्स इज 100 न्यूटन। पीछे से आपके पास क्या आ जाएगा, देयर इज ए रिएक्शन फोर्स यहां पर लगेगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शंस ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू B बाय B कह सकते हैं। सो अब ये चूंकि पूरे के पूरे ये एक्सेलरेशन में कितने से जा रहा है, दिस इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेट फोर्स में लेफ्ट वाला ज़्यादा होगा राइट के तुलना पर, तभी तो ये राइट साइड मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग F अप्लाइड ले लें ऑन ब्लॉक A, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 2 मास इंटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज F अप्लाइड, 100 माइनस रिएक्शन ऑफ A बाई B इक्वल टू 40। सो व्हाट इज द रिएक्शन एट A एट B इक्वल टू 60 न्यूटन एंड सो दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग आंसर। ठीक है, अब अगर मैं उसको दूसरे फॉर्मेट से B से भी चेक करूं तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। इस पर कितना फोर्स लग रहा फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट आई विल डिस्कस इन ए लेटर चैप्टर। और इस पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और इसके मास कितना है, ऑफकोर्स 10 kg, और इस पर रिवर्स का फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन। हम जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन इस साइड जा रहा है और वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कैन यू फाइंड द नेट फोर्स, यस दैट इज पॉसिबल। क्या होना चाहिए नेट फोर्स, आर बी इंटू ए, राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड है नेगेटिव है, मास 10 और एक्सीलरेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। सो व्हाट इज आर बी ए इज इक्वल टू 60 न्यूटन। वेरी इंटरेस्टिंग इन्फरेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हमारा कंक्लूजन हो जाता है कि एट सपोर्ट ये जो आप देख रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर इक्वल, जो मैं आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ में डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट, consider this case. This is 10 kg and this is 40 kg and this is 100 Newton. Okay. Both lie on the horizontal and smooth है, horizontal and smooth surface.
क्या निकालना है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ए और बी का एक्सीलरेशन निकालना। तो जो एक्सीलरेशन ए का होगा वही एक्सीलरेशन बी का होगा, क्योंकि ये एक सिस्टम के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। दो चीज आपको निकालना है। और दूसरा निकालना है व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। ये भी निकालना है, टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई इस स्ट्रिंग को किसको स्ट्रिंग कह रहे हैं? इसको यहां पर टी टेंशन है, इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा। आइए फॉर्मूला। अब आप अगर दोनों को एज ए सिस्टम कंसीडर कीजिए, कंसीडर आंसर्स में आइए, कंसीडर ए एंड बी एज सिस्टम। दोनों को एज सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? आप दोनों पर सारी फोर्स को एक साथ कंसीडर कीजिए। अब अगर इस दिशा की बात करें तो अब देखिएगा ये ज्वाइंट को और ये ज्वाइंट को स्ट्रिंग क्या, ये स्ट्रिंग क्या करेगा? इसको आगे की ओर खींचेगा, इसलिए ये टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगा। और यही स्ट्रिंग इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकेगा, इसलिए ये टेंशन की डायरेक्शन। ज्वाइंट से अवे टेंशन की डायरेक्शन होता है। अब अगर आप इस पर नेट फोर्स लीजिए, व्हाट इज द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप अगर ध्यान से देखते हैं 100 न्यूटन ही रह पाता है, क्योंकि ये टी और ये टी कैंसिल हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन 100 डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 100। दोनों मास को एक साथ ऐड कर दीजिए एंड लेट अस सपोज ए इज द एक्सीलरेशन, सो दिस एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का एक साथ आ गया, ये तो खत्म हो गया। व्हाट इज टेंशन? फ्री बॉडी डायग्राम ले लीजिए, किसी भी एक, आप इसको टारगेट कीजिए ए को। ये कितना केजी है? 10 केजी। अब आप सेपरेट कर दीजिए ताकि आप टेंशन को नहीं, एक साथ जोड़ेंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन कैंसिल नहीं होगा। यही टेंशन निकालना, और एक्सीलरेशन आ चुका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज फोर्स? नेट इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। नाउ व्हाट इज ए मास? ऑलरेडी 10 और एक्सीलरेशन 2 है, सो 20 न्यूटन एंड दैट इज द आंसर। टेंशन का मतलब क्या हो गया? एफ नेट किस पर लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है, वो टेंशन टी कहलाएगा, 20 न्यूटन हो गया। और अगर मैं उस फॉर्मेट से भी देखूं, उससे भी अगर चेक करूं तो क्या आता है बच्चे लोग? ये देखिए 100 न्यूटन है, आप ये पीछे का टेंशन टी ले लीजिए, मास 40 केजी है और इसका एक्सीलरेशन इस दिशा में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना एक बार नेट फोर्स लेंगे तो कौन ज़्यादा होगा इस दोनों में? ये ज़्यादा होगा, ये कम, चूंकि ये आगे की ओर जा रहा है। तो दिस इज 100 माइनस टी, मास है 40 और एक्सीलरेशन है 2, इसलिए t इक्वल टू 20 न्यूटन। तो दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सेम आता है। नेक्स्ट, मैं इसी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इस तरफ से बनाने की कोशिश करता हूं, आप जरा इंजॉय कीजिए इसे। सपोज कीजिए मैंने 3 ब्लॉक्स को वर्टिकली पुल करते हैं। इफ इट इज ए 10 kg मास, दिस इज 20 kg मास एंड दिस इज 30 kg मास। फाइन, मैं इसे 1200 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहा हूं। ठीक हो गया, 1200 न्यूटन से ऊपर की ओर खींच रहा हूं। अब आपसे क्या पूछता है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। दूसरा, टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। सारे स्ट्रिंग्स में टेंशन्स भी बताएंगे आप। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे कि करना क्या है। भाई इसके फोर्स नीचे कितने के लगेंगे? अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो दिस इज 300 न्यूटन m इंटू जी। इसकी ग्रेविटी के फोर्स कितने लगेंगे? 200 न्यूटन। और इसके कितने लगेंगे? 100 न्यूटन ग्रेविटी फोर्स। मैं अगर टेंशन इसकी बात करूं तो ये ज्वाइंट से क्या, रस्सी क्या करेगा? इसको ऊपर की ओर खींचेगा, टी हो जाएगा। और ये क्या करेगा? इसको नीचे की ओर खींचेगा, इसलिए ये भी T1। सो पहला स्ट्रिंग इसको मानते हुए इसकी टेंशन एक दूसरे के अपोजिट लगता है पेयर में। यहाँ पर क्या करेगा? टेंशन ऊपर की ओर खींचेगा T2 और ये बच्चे लोग क्या करेगा? T2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1200, इस पर टेंशन नहीं देना बिकॉज टेंशन ही तो दिया हुआ 1200 न्यूटन। वो टेंशन का ही तो कह रहा कि फोर्स 1200। अगर इसको एक सिस्टम ले लें तो ये देखिए पेयर में कैंसिल, ये दोनों पेयर में कैंसिल, तो दोनों पेयर खत्म हो गया। इसलिए व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड?
100 1200 न्यूटन और डाउनवर्ड कितना हो जाएगा 100 200 300 और 300 600। इसलिए अगर मैं बात करूं एफ नेट अप की ओर कितना लग रहा होगा, नेट में लिखना है दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट इज द नेट फोर्स 1200 माइनस ऑफ 600 दैट टू ग्रेविटी फोर्स। टोटल मास कितना हो जाएगा अगर आप इसको ऐड करते हैं 30 kg 10 kg एंड 20 kg। दिस इज 60 एंड एक्सीलरेशन यू डू नॉट नो। सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, ये 600 हो गया और आपके पास 60 इंटू ए आ गया। सो व्हाट इज द ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन किधर आ गया बच्चे को, ऊपर की ओर आ गया। तो सारे ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन तो सेम हो जाएगा ना, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो सभी का आ गया। नाउ व्हाट इज टेंशन, अगर इसका टेंशन निकालना है तो आप कैसे टेंशन निकालिएगा, सेपरेट कर दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए हमने ब्लॉक इसका, ये वाला ब्लॉक है जो लास्ट में, इसका नाम दे दीजिए CBA। हमने C को टारगेट किया। C में नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी के कारण आप देख सकते हैं 300 न्यूटन, और ये टेंशन कितना है, ये T1 है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सिस्टम ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन 10, विथ दिस एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जाके इस साइड रहा ऊपर की ओर। नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा, T1 ऊपर के लिए पॉजिटिव और 300 नीचे के लिए निगेटिव। मास इसका ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज 30 kg एंड एक्सीलरेशन आपके पास 10 है। इसका मतलब T1 हो जाएगा 600, 300 प्लस 300 ऑब्वियसली इट इज 600 न्यूटन। T1 आ गया। T2 को टारगेट कीजिए। कैसे टारगेट करते हैं, हमको ये T2 निकालना। इस ब्लॉक को लीजिए, देखिए आपको कौन सी ब्लॉक है बच्चे लोग, B ब्लॉक है। इस पर एक ऊपर फोर्स लग रहा है, दिस इज T। क्या कोई नीचे भी फोर्स लग रहा है, यस देयर इज ए T1 फोर्स which is pulling it down and this is the gravity force which is a 200 Newton. So 200 Newton gravity T1 and this is T2। और पूरा सिस्टम किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और एक्सीलरेशन कितना है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखिए तो क्या होता है, नेट फोर्स। कौन सा नेट फोर्स हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो दिस इज T2, और नीचे वाला निगेटिव, तो माइनस 200 माइनस T1। T1 का ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है 600। दिस मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स हो गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास इसका कितना है 20 kg और एक्सीलरेशन आपके पास 10 है, तो इट मीन्स T2 इक्वल टू 800 प्लस 10 1000 न्यूटन। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगर कंसिडर कीजिए कि T1 T2 बस दो ही जो टेंशन निकालना है आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसिडर देयर इज ए पुली suspended from vertical ceiling and there are two mass connected to each other as a blocks. Let us consider this is 20 kg and here it is a 10 kg. आपसे क्या पूछता है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स दोनों का, इसका A मान लीजिए, इसे B मान लो, और आपसे क्या पूछता है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग टारगेट कीजिए। आपको क्या करना है, पहला मेथड, दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, दिस इज 200 न्यूटन विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर ये पॉइंट है, जॉइंट से अवे टेंशन लगेगा, यही टेंशन इसको ऊपर की ओर खींचेगा, और ये कितना हो गया 100 न्यूटन। अब जरा सा चेक कर लीजिए, ये 200 है, ये 100 है, कौन नीचे जाएगा, दिस विल सर्टेनली गो डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड दिस विल सर्टेनली, अगर ये नीचे की ओर मूवमेंट करता है जिस भी एक्सीलरेशन से, और ये स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है तो उतना ही एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर उठेगा। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज लाइट, हल्का है, इनएक्सटेंसिबल, लंबाई में बढ़ने वाला नहीं है ताकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो जाए, एंड स्मूथ भी है, इट डज नॉट बियर एनी फ्रिक्शन, ये भी नहीं है। अब अगर आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम ले लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा, 200 चूंकि नीचे की ओर ही जा रहा है एक्सीलरेशन, और ये माइनस T, मास कितना है 20 और एक्सीलरेशन A मान लेते हैं, इसे A मानेंगे तो ये भी A हो जाएगा। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखिए तो ब्लॉक A का ये ऊपर की ओर जा रहा है विद सेम टेंशन T, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, मास इसका ऑलरेडी है 10 और एक्सीलरेशन है A। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो ये माइनस T प्लस T कैंसिल, ये 100 हो जाएगा, एंड दिस इज 30A। ऑब्वियसली A इक्वल टू 10/3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का मिल गया। व्हाट अबाउट द टेंशन? अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यूज को आप इस 1 and 2 में से किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज टेंशन? दैट इज 100 + 10 × 10/3। सिंपल, 300 + 100 400/3 एंड न्यूटन। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। अब मैं इसका मेथड 2 भी जरा सा देख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड 2 दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। मेथड 2 शॉर्टकट हमें इसे कह सकता हूँ। अब आपका क्या सोचना है, आप डायरेक्ट देखिए इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा फोर्स है? 200। ये इसे गिराने की कोशिश कर रहा है और ये इसे इधर गिराने, मतलब इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है ना। ये 200 से पुल कर रहा है नीचे, ये भी नीचे ही पुल करता है लेकिन अपोजिट सेंस में। तो ये 200 और ये 100, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 200 - 100 नेट फोर्स। मास, चूंकि दोनों मास एक साथ मूव करता है इसलिए हमारा सिस्टम की मास कितना हो जाएगा? 20 + 10 30 एंड लेट अस सपोज एक्सीलरेशन A। सो व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। नाउ अगर आपको अब टेंशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? किसी को भी आप फ्री कर दीजिए। इसे मैंने फ्री कर दिया तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 200। ऊपर का टेंशन है तो माइनस में ले लीजिए, नीचे का था हमने नीचे डायरेक्शन को प्लस लिया। मास ऑलरेडी आप 20 है और एक्सीलरेशन आपके पास 10/3 है, इसलिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 - 200/3। इसका मतलब हो जाएगा 400/3 न्यूटन। आंसर वही है जो पहले वाला आया था, लेकिन दिस अप्रोच इज वेरी इजी। नेक्स्ट, सारा कंडीशन वही है, सिर्फ इसमें पूछता है फाइंड द टेंशन। तो 2 स्ट्रिंग है बच्चे, एक देखिए स्ट्रिंग पूरा यहाँ पर और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पर। इसकी टेंशन की डायरेक्शन अगर T1 माने तो ये टेंशन की डायरेक्शन, इसकी टेंशन की डायरेक्शन T2 लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2। ये जॉइंट माने, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? T2 और ये भी क्या हो जाएगा? T2। सेम स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन थ्रू आउट सेम है। कंडीशंस क्या है? स्ट्रिंग इज ए इनएक्सटेंसिबल, लाइट एंड स्मूथ। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। व्हाट इज द नेट फोर्स पुलिंग? इसे नीचे गिराने वाला कितना हो जाएगा? 30 + 20 मास, 50 kg × 10। तो नीचे गिराने वाला फोर्स कितना हो गया? 500 न्यूटन। और इसको इधर से सेफ्टी देने वाला फोर्स कितना आ गया? 100 न्यूटन। लेकिन ये बचाने वाला, ये गिराने वाला, कौन ज़्यादा है? आप देख सकते हैं गिराने वाला फोर्स ज़्यादा है इस बचाने वाले का, इसलिए इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? गिराने वाला में से बचाने वाला घट जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आ गया? 400 - 100 500 30 + 20 50 × 10 500 10 × 10 100। नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। व्हाट इज द मास? अभी मास को ऐड करना, मास में नहीं घटाना है। तो 30 + 20 कितना हो गया? 50 + 10 60। तो दिस इज 60 मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंपल, दिस इज 400 / 60 इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये दोनों कटेगा, दिस इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द एक्सीलरेशन। सो आपका एक्सीलरेशन आ गया, यहाँ तक आ गया। अब टेंशन को टारगेट कीजिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम से कर लीजिए। इसको देखिए यहाँ से कट कीजिए। अब ये फ्री हो गया, ये ब्लॉक अब ये फ्री हो गया तो स्थिति क्या है? ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 300 न्यूटन। केवल इस ब्लॉक पर हमारा नजर है। नेट फोर्स क्या हो गया? 300। नीचे को पॉजिटिव, ऊपर को निगेटिव ले लीजिए और जा रहा है नीचे की ओर विथ व्हाट एक्सीलरेशन? 20/3। सो व्हाट इज T1? दिस इज 300 माइनस, आप इसको कर लेंगे 6 / 3 600/3। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? T1 = 300 / 3 = 100 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 3 = 900 - 600 300। नाउ T1 तो निकल गया आपका। कैन यू फाइंड T2? व्हाई नॉट? कहाँ से निकालें? आप चाहिए तो इसकी फ्री बॉडी ले लीजिए या बेटर है इसकी फ्री बॉडी, क्योंकि इसमें कम फोर्स लग रहा है। इसको फ्री कीजिए। ये किधर जा रहा है? नीचे की ओर 100 न्यूटन लग रहा है ना। इसका हम लोग फ्री बॉडी ले रहे हैं सिर्फ इसके लिए। इसके लिए किधर जा रहा है बच्चे लोग? आप देख सकते हैं जब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब लीडर कौन हो गया? T2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? T2 - 100। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास और एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी आपके पास है 20/3, इसलिए T2 को भी टारगेट कीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा 100 + 200/3। तो दिस इज इक्वल टू 3 + 500/3 न्यूटन। दिस इज द टेंशन। इस तरह से आपके पास आ गया
On inclined plane, problems on inclined planes. देखिए आपके पास कोई इंक्लाइन सरफेस है, दिस इज ए फिक्स फ्रॉम बॉटम, और इसके टॉप पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक आ गया ना। आपसे क्या पूछेगा भाई कि इसे यहाँ तक आने में कितना वक्त लगता है। सपोज कीजिए ये पूछते हैं कि इसे L डिस्टेंस कवर है यहाँ से यहाँ तक, मास कितना है m, मास हो गया। नाउ दिस एंगल इज थीटा। पूछा L डिस्टेंस करने में कितना वक्त लगेगा जब t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको एक्सीलरेशन चाहिए, किस दिशा में चाहिए, टूवर्ड्स डाउनवर्ड। अब आपके सामने मैं क्या बता दूं कि किसी की भी ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है, इस साइड लगता है। क्या लगता है, mg। इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इस वाले को अलोंग में कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर में हो जाएगा mg कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नहीं मतलब है, लेकिन इस दिशा में आपको टाइमिंग पूछ रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइंड। आप अगर इंक्लाइन की दिशा में जाइएगा तो दिस इज द mg साइन थीटा। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन। मास से मास कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, g साइन थीटा। और ये किस तरफ लग रहा होगा, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, दिस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा। माना कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगा, तो आपको काइनेमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। s कितना दूरी तय करना, l। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 0 एट टाइम t, टाइम t हो गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन में g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज t, दिस इज 12 g साइन थीटा अंडर रूट, एंड दिस इज योर आंसर। नहीं, देखिए आपके पास एक पुली है और ब्लॉक पर है, कहता है कि एक वेज टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, एक तरफ 37 एंगल है, दूसरी तरफ 53 है, और दोनों तरफ मास सेम है। पूछता है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टेंशन। क्या टॉपिक में पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग इंक्लाइन पूछ रहा है, अलोंग इंक्लाइन। और दूसरा क्या पूछता है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दो चीज की टारगेट आपका किया हुआ। आइए इसमें डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, अगर आप बात कीजिएगा ये, तो mg साइन थीटा, mg साइन थीटा के जगह पर साइन 53 डिग्री। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, mg साइन 53 इक्वल टू 4/5, आई कॉल 1। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कौन सा फोर्स लगेगा, तो दिस इज ए mg साइन 37, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, mg साइन 30 इक्वल टू 3/5। नाउ mg 4/5 इज ग्रेटर देन mg 3/5, इसलिए ब्लॉक किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स कौन सा, पुलिंग, जो खींचने वाला है, वो कितना आ जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। यही ना होता है न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। इस पूरे प्रोसेस में मास इज ए कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस। ओके, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं mg कॉमन ले लीजिए, तो 4/5 माइनस 3/5 यहाँ से आ जाएगा, दिस इज द नेट फोर्स हो गया। मास कितना है, दोनों मास को ऐड कर दीजिए 2m, और एक्सीलरेशन कितना है, दैट इज सपोज a एक्सीलरेशन, और ये किस साइड जा रहा है, इस दिशा में एक्सीलरेशन, डाउन द इंक्लाइन, और इधर क्या हो जाएगा, अप द इंक्लाइन जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मास एंड मास गेटिंग कैंसिल, और ये आपके पास हो जाएगा g/5 इक्वल टू 2 इंटू a, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 10। This is it. This is your answer, g/10. Very simple. Now next part of the question is what is tension in a string. किसको आप फ्री कर लिए, इसको फ्री कर लीजिए और इसे निकाल दीजिए। This is the direction of a tension and here it is a direction. ये टेंशन में मास ये नीचे की ओर जा रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स mg साइन 53 डिग्री। टेंशन क्या है, ऊपर की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में t, मास m और एक्सीलरेशन इक्वल टू g/10। दैट इज, आपको टारगेट क्या करना है, टेंशन निकालना है। mg रहने दीजिए, साइन 53 इक्वल टू 4/5 माइनस mg डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू टेंशन t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, mg को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर LCM 10 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू टेंशन, तो सिंपल 9 mg डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू टेंशन। आप आसानी से निकाल लेते हैं।
आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट, जरा से इस पर जरा फोकस कीजिएगा। आप देख सकते हैं देयर आर 4 डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मासेस, ए बी, कंसीडर दिस टू बी द सी एंड दिस इज टू बी द डी। देयर आर 2 डिफरेंट पुली सेट P1 एंड P2। सिस्टम इज स्मूथ एवरीवेयर, सो देयर इज नो केस ऑफ फ्रिक्शन, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ूंगा। अब क्या होता है कि ये ब्लॉक किस साइड गिरेगा ये चेक करना पड़ेगा। आपका ये वाला फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड, आप चेक कर लीजिए, दिस इज द 100 न्यूटन। उसको जरा डाउन चेक कीजिए तो कितना लगेगा, इसे भी चेक कीजिए, 5 × 10 m × g × sin थीटा sin 37। इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 × 10 sin 37 = 3/5, ये 10, 100, 300 न्यूटन। इस दिशा में 300 न्यूटन खींच रहा है और इस दिशा में 100 खींच रहा है। आपको क्या लगता है किधर जाएगा? ये दोनों का ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है इसे गिराने में, ये सीधा जा रहा है और सीधा जा रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो 300 और ये एक गिराने वाला 300 है और बचाने वाला 100 न्यूटन है, इसलिए नेट फोर्स कितना लगेगा? जैसा कि मैंने हमेशा बताया, नेट फोर्स में दोनों में से घटा देते हैं, तो 300 माइनस 100 न्यूटन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 न्यूटन। नेट फोर्स इसको क्या करेगा, सिस्टम को इधर की ओर खींचेगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। सो नेट फोर्स इक्वल टू 200 मास टाइम एक्सीलरेशन। मास कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 50, 60 एंड 110, 110, दिस इज 110 टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर कट जाएगा 0 से 0, सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 20/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, ये एक्सीलरेशन है। अगर टेंशन की बात करें तो कितने बच्चे लोग टेंशन होंगे, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन। कौन कौन टेंशन होगा? इस जगह पर T1 टेंशन होगा, पूरे के सेटअप पर, ये पूरा के पूरा स्ट्रिंग पर T1 होगा। इस पर कितना मान लें, T2 मान लेते हैं, और इस पर कितना मान लेंगे, इस पर T3 इधर लगेगा और T3 इधर लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ निकालना, फॉर एग्जाम्पल T1 निकालना, क्या होगा, ये एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ये, और इसकी वैल्यू है 20/11 एज पर द क्वेश्चन। यहाँ से ये लीडर का काम करता है, जो कि ऊपर की ओर खींचता है, इसलिए नेट फोर्स किधर लगेगा, T1 माइनस 100 नेट फोर्स हो गया। मास कितना इसका 10 और एक्सीलरेशन कितना 20/11। सो व्हाट इज T1, दिस इज 100 प्लस 200/11, आसानी से निकल जाएगा, इतना न्यूटन हो गया। अगर आपको पास निकालना है, सपोज कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग T3, कैसे निकालेंगे T3, इस ब्लॉक पर आ जाए, नीचे पुल कितना कर रहा है 300 न्यूटन, आप देख सकते हैं ये वाला टोटल वैल्यू आ रहा है 300 न्यूटन, और ऊपर कितना खींच रहा है माइनस T3। लीडर कौन है इसमें, किधर खींच लेगा, नीचे, तो जो खींच लेगा उसे पॉजिटिव दीजिए, जो नहीं खींच पाएगा उसे निगेटिव दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन, मास 50 और एक्सीलरेशन 20/11। सो व्हाट इज T3, दिस इज सिंपल 300 माइनस by 11, so this much of the Newton you can solve it. नेक्स्ट, अगर आपको T2 पूछ रहा है तो कैसे निकालिएगा, इसको यहाँ पर कीजिए, ब्लॉक को इसी जगह पर कीजिए, देखिए आराम से ब्लॉक को, इस ब्लॉक को इधर कितना खींच रहा है, T3 खींच रहा है, और इसको क्या खींच रहा है, T1। कौन लीडर है इसमें, सॉरी T2 है, ये लीडर तो T3 ही है ना, क्योंकि इसको इस साइड खींच लेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, T3 माइनस T2, मास कितना है इसका 30 kg है, एंड एक्सीलरेशन सेम सबका आ जाएगा। T3 और T2 में से आपके पास दिया हुआ है, T3 तो आपके पास ऑलरेडी है वैल्यू, T2 आपको नहीं जानते हैं, और एक्सीलरेशन मास आपको दोनों दिया हुआ है, इस तरह से T3 भी निकल जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम्स है, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड लिटिल ट्रिकी प्रॉब्लम ऑल्सो। क्या ट्रिक की ट्रिक है, मैं भी वो आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट अस सपोज इट इज 20 kg, I do consider it 20 kg, दोनों को मैं 20 लेता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस एज ए 10 kg। आपके पास पूछूं कि रस्सी कितने हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक रस्सी ये जा रहा है और दूसरा रस्सी कौन सा जा रहा है, ये छोटा वाला ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक की नाम अगर दिया जाए, लेट अस कंसीडर A, B एंड C। आपसे इसमें एक्सपेक्ट क्या करता है कि आपको टेंशन और एक्सीलरेशन बताना। ये क्या है, पुली। इस पुली को हम लोग 3 कैटेगरी में कहते हैं। दिस पुली इज मासलेस, इसकी कोई भी मास नहीं है, एंड स्मूथ ऑफ कोर्स,
ठीक है। दिस पुली इज कॉल्ड P1 एंड दिस इज कॉल्ड P2 विच इज ए फिक्स्ड। तो ये पुली नीचे की ओर जाएगा अलोंग दिस ब्लॉक P। अब इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ए। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। मैं इसका नाम T देता हूँ, इसका नाम भी T देता हूँ, इसका नाम भी T और इसका नाम T। ये थ्रू आउट टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखिए अपोजिट पेयर में T और ये भी T हो जाएगा। इस जगह पर आपको क्या लेना है, लेट अस कंसीडर दोनों टेंशन निकालना। तो ये जॉइंट है तो ये T डैश हो गया और यहाँ पर भी T डैश हो गया। ओके, अब बात करना है कि इसमें निकालना क्या है, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स हैं, एंड एक्सीलरेशंस। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसका एक्सीलरेशन अगर ए होगा तो इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा और इसका भी एक्सीलरेशन ए ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स एंड पुली हैं ये फ्री हैं, कोई किधर भी ज़्यादा या कम से आगे पीछे जा सकता है, ये गारंटी नहीं है। आप अगर ये कहिएगा कि ये दोनों का सेम जाएगा तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए 40 kg। मैं जानबूझ के चेंज कर दिया ताकि आप ये नहीं सोचिए कि वो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, मैं उसकी मौका नहीं दूंगा आपको। चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आइए बच्चे लोग, ये वाला मास का किधर लगता होगा 20 kg और ये मास भी किधर लगता होगा, दिस इज 400 न्यूटन डाउनवर्ड लगता हुआ। ये कितना लगेगा 200 न्यूटन। आप क्या मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में ये हम लोगों को सोचना है कि हम किस डायरेक्शन में जाए। मैं ये कहता हूँ कि लेट अस सपोज इट इज गोइंग डाउन। देखिएगा ध्यान से, इसको मैंने डाउन माना, एज्यूम कर लीजिए, इसको भी आप क्या मान लीजिए, डाउन मान लीजिए। आपने एज्यूम कर लिया और इसको क्या मान लीजिए, लेट अस सपोज इट इज गोइंग अप। अब यहाँ पर रुकिएगा, मैंने इसका नाम क्या दिया, एक्सीलरेशन 1 इस ब्लॉक की, ठीक है। इस ब्लॉक का मैंने क्या दिया, एक्सीलरेशन 2 और इस ब्लॉक का मैंने नीचे की, ये किधर दे रहा, ऊपर की ओर है, तो लेट अस सपोज एक्सीलरेशन 3। तो आपके पास कितने एक्सीलरेशंस हो गए ब्लॉक का। अब ये पुली का और ये ब्लॉक का, ये दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो जितना एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा ये ब्लॉक भी उतना से, ये दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। बाकी ये A1 एक्सीलरेशन है, वो A2 एक्सीलरेशन और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के साथ A3 एक्सीलरेशन है। सो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, A1, A2 एंड A3, 3 अननोन्स हो गए। ये अननोन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से समझिए। 3 अननोन हो गए। अब आपके पास 2 और भी अननोन है, क्या नाम है, एक टेंशन ये नहीं जानते हैं, एक टेंशन ये भी नहीं जानते हैं, तो T एंड T डैश अननोन हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल अननोन कितने हो गए, 5 अननोन हो गए। आप यहाँ पर से टोटल पहले अननोन लिखिए, टोटल का मतलब हो जाएगा 5 अननोन जिसकी वैल्यूज आपको निकालना है। अब ये मैथ कहता है भाई कि 5 अननोन या 5 अननोन निकालने के लिए आपके पास 5 डिफरेंट इक्वेशंस चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए मैं देखता हूँ कितने इक्वेशन लिख पाएंगे। एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे। तो 4 इक्वेशन लिखने के लिए तो आपको दिख रहा है, 5वां जो होगा वो कांस्टेंट रिलेशन से होता है, मैं इसी बात पर जोड़ दूंगा। चलिए अभी आप लिखिए इक्वेशंस को कैसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये आपने क्या जोड़ दिया, ये नीचे की ओर जाता है, तो ब्लॉक ए के लिए, फॉर ब्लॉक ए, बढ़िया से सीखिएगा, फॉर ब्लॉक ए के लिए आप क्या देख सकते हैं, ये नीचे जाता है ना भाई, तो ये डोमिनेट करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 200 माइनस T मास 20 और एक्सीलरेशन, इसका नाम क्या दे रखा है A1 इक्वेशन 1 फॉर ब्लॉक ए के लिए। नाउ फॉर ब्लॉक सी के लिए आइए, फॉर ब्लॉक सी के लिए ये भी मैंने क्या दे रखा, ये भी भाई नीचे ही जाएगा, आप जूम किए हैं तो 400 माइनस T, दिस इज 400 माइनस T इसलिए कि ऊपर है T, एक ही स्ट्रिंग पर इसलिए भी टेंशन सेम है। ब्लॉक का मास कितना है 40 और उसकी एक्सीलरेशंस को आपने क्या माना, देख सकते हैं A2 लिए हुए, A2, दिस इज इक्वेशन 2। 2 आ गए, मैंने कहा ना 5 इक्वेशन आपको चाहिए, 2 तो खत्म हो गया। आप अब इसको आइए, इसको किसकी बात कर रहे हैं, पुली 3 की। ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, T और नीचे में कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर बात करें T डैश, ठीक है। हम ये मान के चलें कि ये दे रहा है कि ये वाला कितना एक्सीलरेशन से जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये 2T हो जाएगा। इसका इक्वेशंस क्या बनेगा, न्यूटन्स लॉ, ये T और ये T दोनों एडिशंस हो जाएगा, 2T, ये डाउनवर्ड जा रहा है माइनस T डैश, मास पुली का,
मास पुली का कितना है 0 और एक्सीलरेशन कितना है a3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, क्या आ गया, t डैश इक्वल टू 2t, इक्वेशन 3। अब तक 3 इक्वेशन आ चुका है, 5 अननोन है, 2 इक्वेशन और चाहिए। अब मैं क्या करूँ, आपके पास एक चौथा इक्वेशन बी पर से बनता है फॉर ब्लॉक बी। आपके पास कितना आ गया था, ये फॉर P3 के लिए था, पुली कौन सा पुली था, 3 पुली था। 3 इक्वेशंस आ गए। चौथा एक और देखिए, चौथा इक्वेशन। अब आप ब्लॉक बी के लिए कीजिए, फॉर ब्लॉक बी के लिए इक्वेशंस लिखिए बी के लिए। आप क्या दे रहे हैं इसमें, आप देखिए खुद ही ना आपने दे रहा है कि एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टी डैश इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। तो टी डैश माइनस नीचे की ओर लग रहा है 100, मास कितना है 10 और एक्सीलरेशन कितना दे रखा है a3। यस, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। यस, अब आप लॉक्ड हो गए। पांचवा इक्वेशन लिखने के लिए कहीं जगह नहीं है, आपने सभी वेरिएबल को लिख लिया 3 और 4। अब आपके पास पांचवा जो रिलेशन लिखना है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, और इसको मैं कहता हूं कांस्टेंट्स रिलेशन। कांस्टेंट प्रतिबंधित रिलेशंस, प्रतिबंधित रिलेशंस का एक्सीलरेशन, मतलब वह एक्सीलरेशन जो एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। आप कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन, a1, a2 और a3 का रिलेशंस को देखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए स्ट्रिंग क्या है, लेंथ इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या लेगा कि ये वाला पॉइंट जो मास है, ये वाला जॉइंट, वो इस लेंथ को देखिए, इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा या घटाने का। ये देखिए, ये जैसे ही नीचे जाएगा तो इस लेंथ को क्या करेगा, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट का जो मूवमेंट होगा ना, जैसे ये नीचे जाएगा एज पर द डायरेक्शन, तो इसको नीचे जाने वाला बढ़ाने वाला तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये एक्सीलरेशन a1 पॉजिटिव, क्योंकि नीचे जाने के क्रम में इस लेंथ को बढ़ा रहा है। दूसरी बात है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अपनी जगह पर न तो ऊपर जा रहा है, न तो नीचे जा रहा है, न तो लेंथ को बढ़ा रहा है, न तो घटा रहा है। यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन दोनों 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को 0 दिया। मैंने डिटेल में पूरा के पूरा एक कांस्टेंट रिलेशन का वीडियो लोड कर चुका हूँ, आप उस पर भी देख लीजिएगा। लेकिन चलिए मैं यहाँ भी बता दूँ, ये 0 और 0 है, क्योंकि ये पॉइंट न तो बढ़ा रहा है न तो घटा रहा है। आइए इस पॉइंट की बात, ये किधर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, इसकी एक्सीलरेशन को घटाएगा, तो वो -a3 हो जाएगा, लेंथ को घटाएगा। और ये जॉइंट यहाँ पर भी है a3, इसका a3 और ये दोनों एक ही एक्सीलरेशन है। ये वाला भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी लेंथ को घटाएगा, -a3 आ गया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों 0 0, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, न तो ये लेंथ को घटा रहा है जॉइंट, न तो ये बढ़ा रहा है। और इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या है बच्चे लोग, ये कह रहा है कि ये नीचे जा रहा है, मतलब इस लेंथ को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट के कारण ये लेंथ को बढ़ा रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और इसकी क्या एक्सीलरेशन a2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या रिलेशंस हो गया, a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a3। दिस इज द इक्वेशन 5। अब आपके पास 5 अननोन 5 इक्वेशंस हैं। इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग जरूर लगेगा, लेकिन ये लीनियर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड का नाम देना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा एक एक कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते जाइए और आप लास्ट में 5 अननोन को सॉल्व कर लीजिएगा। लीनियर समल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ 5 वेरिएबल्स एंड 5 इक्वेशंस, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ में। जरूरत पड़ा तो मैं भी आपको किसी समय बता दूंगा। तो आज का मेरा वीडियोस पर यही फोकस था। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स को लेकर चला था न्यूटन सेकेंड लॉ में। न्यूटन्स के पूरे सीरीज का 3 लेवल पर मैं लोड करूंगा। पहला लेवल ऑलरेडी लोड हो चुका है, इस लेवल को हम लोग कहते हैं बेसिक्स एंड फंडामेंटल लेवल, जो कि एनसीईआरटी लेवल से मान सकते हैं इसे। दूसरा लेवल क्या हो जाएगा, नीड्स एंड मेंस लेवल की आ जाएंगे, वो भी वीडियो जस्ट आने वाला है आपके पास। और तीसरा और लास्ट लेवल रहेगा आईआईटी एडवांस एंड ओलंपियाड लेवल। अब अपने ज़रूरत के मुताबिक आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेरा कहना यह है कि कॉन्सेप्ट पर आप स्ट्रॉन्ग रहिए और कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने सॉल्व कर रखा है उसको सॉल्व कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि उस लेवल पर सॉल्व करने के बाद किताब भी या किसी के भी जो सीट्स में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बेशक आप उसको ट्राई कीजिएगा एंड यू सक्सेसफुली डू इट। तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक का था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ए मोशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत लोड करने जा रहा हूँ न्यूटन्स के थर्ड लॉ, आप उसे देखिए। उसके बाद की बात मैं आपको नेक्स्ट में बताते रहूँगा। लेकिन आपका एक काम ये जरूर है कि कांस्टेंट्स रिलेशंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए। लगभग 1 घंटे का वीडियो ये भी लोडेड है, ऑलरेडी काफ़ी पहले से ही लोड है, आप उसे देख लीजिए। चलिए आज का मेरा क्लास यहीं तक सीमित रहता है। गुड बाय एंड गुड